So verb is the meaning of action of noun and pronoun. Whatever we can say the verb. Verb is the action or related with the action of noun and pronoun. Noun and pronoun. It's related to action or reaction in between. So verb is nothing else but what is going on inside the sentence, what is going on with the your thinking. Is there anything which is going to be there? So called action or done or did or action or reaction with a noun or pronoun. So verb as you can say the type of verbs. So a simple example, if we have to take the boy runs, suppose that I told you Sohan or he is running in the field, right? So everybody knows verb is what? This is the verb, isn't it? Run and ing because of continuous. Boy is, and what is auxiliaries? This is what auxiliaries so called, I'll tell you just later. Auxiliaries are, you can say, helping verb. And what is the main verb here is the running. Main verb is the run or principal verb I can say. So principal verb, no helping is there, and helping verb is the helping one, that is so called auxiliaries, right? Or you can say the verb with action is required to take over with the sentence. किस समय पे बात है? Is, am or whatever जो यहाँ पर लगेंगी, that gives you the action of tense. I have told you earlier कि कभी भी टेंस का पता करना हो, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के सामने में वी नीड ऑक्सिलरी, या टेंस का पता करना हो तो ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़ती है. हियर आई एम जस्ट गोइंग टू डील विद द वर्ब एंड इट्स टाइप. तो वन थिंग इज दैट इफ I told you earlier also, this is here a subject, so here is a one noun or pronoun here. ये क्या है? Pronoun. Here is the field, is the object, right? And this is what so called subject. So I had told you that a subject and object if related together with a verb, अगर इसका कोई लिंकिंग जोन है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, तो ये वर्ब कैसा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब. सो ट्रांजिटिव वर्ब. सो कैन आई से इफ ट्रांजिटिव इज देयर, इफ लिंकिंग विद द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, सो देयर समथिंग सो कॉल्ड इंट्रांजिटिव. सेकेंड टाइप इज intransitive verb. See, verb का if subject object का relation है in between में with the help of verb, that it will be the transitive. और अगर ये complete हो जाता है without object, that verb will be the intransitive. जैसे हमने लिख दिया he is ill, he is ill. ये क्या है बेटा? verb. क्या है? verb. Auxiliaries are helping verb. Here again हमने एक सिमिलर एग्जांपल लिख दिया. सपोज दैट इन अदर साइड ही इज इल, ही इज इल विथ, और यू कैन से ड्यू टू मलेरिया. So here is
अगेन अ वर्ब, ये भी वर्ब है, सिमिलर वर्ब है, ही इज इल, लेकिन यहाँ ये कंप्लीट होती है बात, वह बीमार है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कैसे बीमार है, क्यों बीमार है, कब तक बीमार है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया वर्ब, यहाँ पर बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया, ही इज इल। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही इज इल ड्यू टू मलेरिया, तो ऑब्जेक्ट क्या है अभी आपके पास, मलेरिया की वजह से बीमार है, राइट। तो लिंकिंग जो चल रहा है वर्ब में, किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, इन बिटवीन में अगर आपको कोई वर्ब मिलता है वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा, एंड सेकंड वर्ब इज द इंट्रांजिटिव। सपोज आई हैड टोल्ड यू मेनी थिंग, जस्ट सी, राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ ही कैन रन फास्ट, ही कैन so second example, I write a story, right, I write a story, and I write neatly, clearly, is adjective one. How will write the clearly? So here write is the verb, here again write is the verb. So suppose that यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और स्टोरी लिखता है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये किस टाइप का वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ए एडजेक्टिव है, क्लियरली लिखता है, क्वालिटी बताया जा रहा है, लेकिन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सो कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो इफ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द वर्ब के टाइप, तो एग्जाम्पल में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जैसे द चिल्ड्रंस आर चाइल्ड वीप्स, लड़का रोता है, क्या एग्जाम्पल आएगा, टेल मी, नाउ गो फॉर द एग्जाम्पल, राइट डाउन द क्लासिफाइज विच टाइप ऑफ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, I am very clear with the types. So one thing is there, write down, I'm just telling you, I'm speaking, write down the things, mother sleeps, mother sleeps, child weeps, right, suppose that it too is there, child weeps, he reads book, you are playing in the garden, he is good for nothing. So if we go for the classify the types of verbs or what I told you, I think you will get the same thing here. In this case, mother sleeps. Which type of verb is there? That is what? Transitive or intransitive. So can I say it's a example of intransitive verb. Why so? There is no object. Mother sleeps. Verb है ना बेटा, ये वर्ब है एंड इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कंप्लीट हुआ। चाइल्ड वीप्स, अगेन दिस इज द वर्ब। ही रीड्स बुक, हियर इज द वर्ब, आर यू गेटिंग, हियर इज द वर्ब, वर्ब है रीड्स, बट व्हाट इज द बुक, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ है, दैट इज विच टाइप ऑफ, दैट इज टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हियर playing, here is the subject, here is the object.
So again transitive. Again this one is the transitive. Here is the intransitive. Intransitive verb, right? So here is what? Just have an example of this one. Here is good. That is object. Nothing. Nothing. So there is nothing. Something. No any object is there. Only even no verb is principal verb नहीं है यहाँ पर कोई भी principal verb या main verb absent है, कुछ करने की बात नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं है. But here is one thing, that is so called auxiliaries or helping. So auxiliaries को थर्ड टाइप में पढ़ेंगे, auxiliaries और helping verb. बाय वे ऑफ विच, इससे हम क्या पता लगाते हैं, इससे हम कंप्लीट पता कर सकते हैं कि किस चीज़ का टेंस है, टेंस का पता लगाते हैं, राइट. और इसको विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, राइट. विद द हेल्प ऑफ इससे हम नेगेटिव वर्ड्स सेंटेंस को चेंज करते हैं. सिमिलर. So auxiliaries are helping verb is those which helps the principal verb. Principal verb है तो उसको help करता है. That is so called auxiliaries. So जैसे हमने लिखा I have taken my meal. Say example, if I have a two sentence, I have taken my meal. मैंने अपना खाना खा लिया है. So verb is what? Taken. And this is what? Auxiliaries. But see again, I have a pen. What is difference between them? दोनों में have लगे हुए हैं, right? I have taken my meal. And here again, I have a pen. Simple verb दोनों जगह, right? So can I ask with you, with your knowledge point of view, what is difference between them? यहाँ पर एक मेन और प्रिंसिपल वर्ब भी है, taken, isn't it? Third form of take, took, taken. So take, took, taken. Here is the main or principal verb, isn't it? Yes, okay. So I have a pen. ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज, इज इट? लेकिन आई हैव अ पेन, इसमें कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, वहां पर प्रिंसिपल वर्ब यही है, इज इट? मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, हियर इज नो ऑक्सिलरीज, ये प्रिंसिपल वर्ब ही है. मतलब इसमें हैव, अब आप कहते हैं कभी ऑक्सिलरीज, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, राइट? हैव, हैज, हैड, शुड, कुड, आई, ये सब आपके प्रिंसिपल नहीं, ऑक्सिलरीज हैं. बट इस केस में आप देखिए कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है. जो ऑक्सिलरीज के काम करते हैं वो यहाँ पर उसका मीनिंग है माने रखना, राइट? आई हैव अ पेन. जैसे कभी आपने लिखा आई हैड डन इट, आई हैड डन, इतना ही अगर छोड़ दिया, आई हैड डन. प्रिंसिपल वर्ब कौन है यहाँ पर? दिस इज वर्ब. डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू, डिड एंड डन. थर्ड फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म में टेंस पता चलेगा, आई हैड डन. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट अ टेंस. हैड अगेन डन, पास्ट बिकॉज ऑफ हैड, इजंट इट? बिकॉज ऑफ हैड, व्हिच टेंस? पास्ट. And third form of the verb, that is perfect, isn't it? Past perfect tense. Tense का पता लगाना हो आपको क्या चाहिए? Auxiliaries are helping verb. So here I'm just going to take you one thing again. I had done one. Here is the auxiliaries and this is the what? Principal verb. लेकिन यहाँ पर have और has में डिफरेंस क्या है? ये स्वयं में प्रिंसिपल वर्ब है. I have a pen and I have taken. प्रिंसिपल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है, isn't it? So one thing, another. This is what? Verb with complete sentence or prediction and verb with incomplete prediction. So if we are going to take the Sohan is a player, right?
अगर हमने ऐसे बोला सोहन इज अ प्लेयर, द बॉय सीम्स हैप्पी, राइट डाउन अगेन with complete production and incomplete production. Suppose that, write down, he plays a cricket. I think he plays. The main verb. Here is the object, here is the subject. This is what so called complete production. He plays subject as well as object with there. Alright? And what do you mean by the incomplete production? That is, the boy seems happy. Sohan is a player, right? Sohan is a player. Okay, good. So give me the answer. Sohan is a player. What is main verb? What is main verb here? Is there any main verb? Sohan is a player. Main verb is there? Is there any main verb? No. कोई मेन वर्ब है ही नहीं है. दिस इज व्हाट क्वालिटी या एडजेक्टिव या उसकी मेन बात है. दिस इज व्हाट सो ऑब्जेक्ट इज देयर बट इज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब इज देयर. सो किस तरह का हो गया? दिस इज सो कॉल्ड इनकम्प्लीट. बात कंप्लीट नहीं. नो ऑब्जेक्ट इज देयर. सोहन इज प्लेयर. सोहन प्लेयर है. अगर हम कहते हैं सोहन इज अ प्लेयर या इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, इजंट इट? तो अभी वही बात है, इज यहां भी लगा हुआ है लेकिन अभी क्या हमारे पास है? ऑब्जेक्ट है. सो कैन आई से दिस इज द वर्ब विद कंप्लीट सेंटेंस. यहां पर सारी बात कंप्लीट हो रही है, इधर कंप्लीट नहीं हो रही है. इजंट इट? ही इज इल. जैसे हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या दिक्कत है और कैसे आप समझेंगे. ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रिलेटेड विद सब्जेक्ट. intransitive verb, no subject. Are you saying if there is no object or there is no relation between, so it will be the intransitive verb. Helping verb, that is auxiliaries, and main verb, which is the main action with the what we are going to tell. that auxiliaries से क्या पता चलते हैं आपसे? उसका auxiliaries से टेंस का पता चलता है. क्वेश्चन मार्क बनाना होगा ऑक्सिलरी से पता चलता है. और अगर आपको इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने जाना है. अफर्मेटिव है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको ऑक्सिलरीज खोजना पड़ेगा. विदाउट ऑक्सिलरीज, बिना ऑक्सिलरीज के यू कांट गिव एनी इंट्रोडक्शन फॉर द सेंटेंस. सो राइट डाउन द सम क्वेश्चंस फॉर यू. राइट डाउन क्वेश्चन. She ran away quickly. She ran away quickly. Write down by your own. She ran away quickly. Everybody write. What I'm telling you, asking you with the she ran away quickly. Next example, next question. Birds fly in the air. Birds fly in the air. He speaks the truth. He speaks the truth. Abhinav runs very fast.
Okay, so you will do the by your own which type of verb is there inside the sentences. जो सेंटेंस आपको दिए हैं 4-5 उसमें से आपको निकालना है कि किस तरह का कौन से टाइप का वर्ब है. आई थिंक सो इट्स अ वेरी सिंपल. अभी आपको क्लियर हो गया होगा. इफ यू आर नॉट वेरी एबल जस्ट लुक फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. ही रैन अवे क्विकली. एक आंसर इसका तो बता दीजिए. शी रैन अवे क्विकली, दैट इज व्हाट. ये ट्रांजिटिव वर्ब है या मेन वर्ब. सी मेन वर्ब में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. So transitive with a complete object. If there is no object, so it should be the what? Intransitive. May I ask again, which type of verb is there? Ran है, right? कौन सा verb है? Somebody give the answer. Main verb. Main verb is the ran. I am asking the type of main verb. टाइप्स कौन सा है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. सो आई हैड टोल्ड यू इफ ऑब्जेक्ट इज देयर देन इट विल बी ट्रांजिटिव. देयर इज नो ऑब्जेक्ट. क्विकली इज द क्वालिटी, राइट? इट्स एडजेक्टिव वर्ब. सो यहाँ पर क्विकली ये बात फिनिश हो जा रही है. रैन इंट्रांजिटिव सेंटेंस है. ये सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, इजंट इट? सो 4-5 एग्जाम्पल आपके पास है, उसको डू बाय योर ओन एंड विल गेट द सेम टाइम आंसर टू यू. जो हमने अभी दिया आपका वो करके आएंगे. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द थिंग. वन थिंग इज देयर, राइट डाउन द फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स. फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स. राइट? So in case of finite verb, you may write the finite verbs change with a, write down, finite verbs change with subject. So finite verb change with subject, that is yes or yes, singular plural. तो इसके हिसाब से बनाएंगे. दैट विल फिनिश. सो सपोज दैट एग्जांपल, ही प्लेज अ क्रिकेट. एग्जांपल, ही प्लेज अ क्रिकेट. सी डाउन. प्ले इज द मेन वर्ब. यस और यस टेल्स यू दैट इज द फिनिट वन. व्हाई सो? ही प्लेज अ क्रिकेट. प्लेज वर्ब या प्ले का वर्ब प्ले भी कहीं होता है. प्ले. इफ वी प्ले अ क्रिकेट. सो ये प्ले यहां पर और प्ले यहां पर. व्हाट इज डिफरेंस विद दैट? चेंज विद द सब्जेक्ट. एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल. सब्जेक्ट के हिसाब से ये अगर चेंज होते हैं तो इसको फिनिट वर्ब कहते हैं. फिनिट वर्ब द चेंज विद द सब्जेक्ट. जैसे यू आर, आई एम, ही इज, राइट? दे आर. सो उसके हिसाब से हम इज एम आर के साथ से वहां क्या लगाते हैं? मेन वर्ब को चेंज करते हैं. जैसे मोहन एंड सोहन आर डूइंग वेल. So here is the doing, right? Here is the are. ये auxiliaries है. Auxiliaries और do is the verb, right? But अगर हमने कहा कि मोहन डज. सी मोहन डज. तो डू की जगह भी हमारा यस या यस हुआ और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट. इट्स ओके.
सो यहाँ सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर प्लूरल हो गया बिकॉज ऑफ टू सब्जेक्ट इज देयर, मोहन एंड सो ऑन, देयर आर सिंगुलर नॉट अ प्लूरल नंबर इज देयर, सो हियर इज द डूइंग और वॉट एवर, आर लगा हुआ है बिकॉज ऑफ प्लूरल नंबर। मोहन डज, मोहन करता है, तो तातीते सिंगल बिकॉज ऑफ सिंगल मोहन इज देयर, और इसकी वजह से हमारा ये डू का वर्ब चेंज हो रहा है, डू एंड डज, हियर इज डू ओनली, हियर इज द डज। तो ये चेंजिंग किस लिए हो रही है? ये चेंजिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो कॉल्ड फिनिट वर्ब। इट्स ओके नाउ? सो देन व्हाट नॉन फिनिट? राइट डाउन वन थिंग अगेन, नॉन फिनिट or infinitive, it does not change with a person. Non-infinitive or infinite, it does not change with person or subject. It functions as noun and pronoun. Functions as noun and pronoun, sometimes adjective also, and does not change with subject. Non-finite, या इसको इनफिनिट भी कहते हैं। आई टोल्ड यू फिनिट वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज होते हैं। नॉन फिनिट या इनफिनिट जो इस पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वचन है कि बहुवचन है, फर्क किसका पड़ता है? वो स्वयं में, वो खुद में, वो वर्ब खुद में सब्जेक्ट के तरह से नहीं चेंज होते, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो चेंज होते हैं, वो काम करते हैं, जैसे नाउन का काम हो जाए, प्रोनाउन का काम हो जाए, या समटाइम ऑब्जेक्टिव, जैसे या एग्जांपल फॉर गुड एग्जांपल, और राइट डाउन द गुड एग्जांपल फॉर नॉन फिनिट। राइट डाउन, सी टू किल द स्नैक, to kill the snake is courageous. Kill the snake is courageous. Snake is courageous. सो यहाँ पर कोई मेन वर्ब है बेटा? यस, विच वन? किल। काम क्या हो रहा है? किलिंग का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। राम ने मारा, राम किल द स्नेक ऐसा नहीं लिखा, मोहन सोहन ऐसा नहीं लिखा, नो सब्जेक्ट इज देयर, विदाउट सब्जेक्ट किल लिख दिया, एंड यू नो किल माने मारना, लेकिन यहाँ ये वर्ब की तरह काम कर नहीं रहा है। कैसा? टू लग गया, टू किल नाउन। अभी ये मारने की बात हो गई, तो अभी ये आपके पास क्या नहीं है? ये मेन वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो इसीलिए इसको हम नॉन फिनिट या इनफिनिट बोल देते हैं। हियर इज द वन थिंग दैट इज ऑक्सिलरीज। सो सिमिलरली राइट डाउन नेक्स्ट, प्रीचिंग, या तुम वो बोलते हो एक बहुत अच्छा सेंटेंस इज अ फ्रेज आल्सो, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लिखते हैं ना? देन लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पर ये मेन वर्ब नहीं है लाफिंग, लेकिन लाफ माने हंसना होता है, बट लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो लाफिंग अब ये नाउन बन जाता है, राइट? लाफिंग करना, हंसना, बट हंस रहे हैं नहीं, हंसा नहीं, हंसेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, हंसना, दैट इज मेन ऑफ, इसको हमने नाउन बना लिया, और इस समय ये नॉन फिनिट वर्ब हो गया, दैट मीन्स ये वर्ब नहीं है। इसको इनफिनिट कहें, नॉन फिनिट कहें, तो ये कोई वर्ब ही नहीं है, समझो। अब ये तो नाउन, प्रोनाउन
ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। इसमें वर्ब कोई काम नहीं करता, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। तो सिमिलरली व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, तो वर्ब के आपको केवल सेंटेंस में देखना है कि पोजीशन क्या है। इट मे बी ट्रांजिटिव, मे बी इंट्रांजिटिव। आई विल रिपीट, जस्ट मेमोराइज द थिंग्स। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का लिंकिंग चल रहा होगा। जैसे आई एम राइटिंग विद अ पेन, लिख दिया आई एम राइटिंग विद अ पेन, तो वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो गया, इधर आई और उधर विद पेन, बीच में राइटिंग। सो दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव वर्ड। आई एम राइटिंग विद अ पेन, पेन इज देयर ऑन साइड, आई एम राइटिंग विद अनदर साइड, तो दोनों को लिंक कर रहा है। लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं मेन वर्ब को, इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक, अब जहां पर ऑब्जेक्ट होगा नहीं, कोई लिंक नहीं होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया आई हैव, व्हाट आई टोल्ड यू, या ही इज इल, ही इज इल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, जैसे आपने कह दिया आई एम नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग मतलब मैं ठीक नहीं हूं या अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं या मेरी तबीयत खराब है, बात एक ही हो गई। आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट मीन्स व्हाट, हियर फील करना इज द वर्ब, फील करना इज द वर्ब। आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, ये किस टाइप का एग्जांपल है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? सो इट विल बी द इनट्रांजिटिव वर्ब। व्हाई? सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत खराब है, लेकिन किससे खराब है, क्यों खराब है, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव हो गया। और अगर ये कंप्लीट होता आई एम फीलिंग नॉट फीलिंग विद बिकॉज या ड्यू टू रीजन बता देते, ऑब्जेक्ट कुछ हो जाता, देन इट विल बी द ट्रांजिटिव हो जाता। पोजीशन सेम है, वही वर्ब कहीं आपको फिनिट हो जाएगी, इनफिनिट हो जाएगी। कभी वर्ब को हम ऑक्सिलरीज दे देंगे, नॉन फिनिट, इनफिनिट, तो कहने का मतलब अगर हम फीलिंग वेल इज ए गुड थिंग, अगर हमने इसको उठा दिया और अभी मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, देखना जरा सा प्लीज, फीलिंग वेल, अब लो बात वही हो रही है, फीलिंग वेल इज नाइस, अच्छा महसूस करना है, अच्छा रहना, अच्छा हेल्थ होना अच्छी बात है या सुंदर है, राइट? तो लिख दिया फीलिंग वेल, फीलिंग सेम है, हियर इज द फीलिंग, यहाँ भी फीलिंग है बेटा, लेकिन इसकी पोजीशन डिफरेंट है। पहले वो कहा था, वो बता रहा था कि आई एम नॉट फीलिंग, मतलब वो किसी की बात को बता रहा है, दैट इज व्हाट वर्ब। और ये इनट्रांजिटिव वर्ब में है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर हमने लिख दिया होता आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज आई वॉज देयर इन अ मैरिज पार्टी अर्ली नाइट या लास्ट नाइट, कारण बता देते, ऑब्जेक्ट बना लेते, देन इट विल बी द व्हाट, ट्रांजिटिव हो जाता। अभी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इतनी सी बात है, इनट्रांजिटिव हुआ। अगेन अगर इसको उठा के हमने स्टार्टिंग कर दिया, जहां नाउन रहता है, जहां प्रोनाउन रहता है या एडजेक्टिव बन जाता, तो वहां हमने कह दिया फीलिंग वेल, वर्ब तो वही है फीलिंग, बट पोजीशन डिफरेंट हो गई। नाउन के प्लेस पे क्या लिखा, फीलिंग वेल, नाउन के प्लेस पर लिख दिया फीलिंग वेल इज अ गुड और नाइस, तो फीलिंग यहाँ पर नाउन हो गया, तो ये नॉन फिनिट हो गया, राइट, या इनफिनिटिव वर्ड्स। सो फाइन, जस्ट टेक auxiliaries and so called model auxiliaries. Auxiliaries में भी two type हैं, I'm just giving clue to you and go for your exercises with your book and all. Auxiliaries, two type again, modal auxiliaries, then single auxiliaries and modal auxiliaries. So here everybody knows is, am, are, do, does, was, where, will,
shall, have, has, etc. I think this is what auxiliaries is there. Has, is there any, what is there? So have, has, etc. See, now next is the modal auxiliary. Said, you know, can, or second form, could, may, might, should. Can, could, may, might, should, would. Etc. These are the modal auxiliaries, as you know. So this is so called modal auxiliaries. Even this will, shall also used modal auxiliaries. See, when future we are going to take, future tense लेते हैं तो इसमें हमारा आता है will and shall, लेकिन जब हम इसको can, could और second form, third form में रखते हैं, this is used as the modal auxiliaries. मॉडल ऑक्सिलरीज को ले जाते हैं. तो मॉडल इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज इज द ऑक्सिलरीज, और विल, शैल जंपिंग अप विद द मॉडल ऑक्सिलरीज. तो मॉडल ऑक्सिलरीज में विल, शैल, कुड को रखा जाता है. तो ऑक्सिलरीज का मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट. सो अभी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं. यूजेस ऑफ वर्ब. राइट डाउन सम सेंटेंसेस टू यू. How we use the verb. I think you are doing well with the us.